दुबई कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन बल्ला उनका कुछ खास चला नहीं। ना गुरबाज चले, ना वार्नर एक बार फिर सेट होने से पहले पवेलियन लौटे और सिर्फ 21 रन ही बना पाए। बाकी अगर चले तो सिकंदर रजा, क्योंकि सिकंदर रजा बल्ले से तो सिकंदर बने मैच के, लेकिन साथ ही साथ बने गेंद से। और कार्लोस ब्रैथवेट, उनको आज मौका मिला था, वो आए, वो छाए और उन्होंने 3 विकेट्स भी चटकाए। इस तरह से दुबई कैपिटल्स की गाड़ी 132 तक पहुंची और उसे चेस करते हुए जेम्स विंस, कॉक्स और साथ ही साथ क्रिस लिन सब ने कंट्रीब्यूट किया और एक कमाल का कैच वहां सैम बिलिंग्स ने भी पकड़ा। लेकिन यहाँ पे एक बार तारीफ जरूर करनी होगी दुबई कैपिटल्स के गेंदबाजों की कि एक लो टोटल में भी मैच को खूब बांध कर रखा। 3 विकेट से गल्फ जैन जरूर जीत गए, लेकिन सिकंदर रजा और वैंडर मर्व ने 3 विकेट्स और 2 विकेट्स चटकाए, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ था। आइए, क्रिकेट सफारी पे आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं 2 हीरोज यहाँ पे, हमारे कमेंटेटर्स निखिल चोपड़ा और साथ ही साथ सबा करीम, एंड द हीरो ऑफ लास्ट ईयर्स फाइनल्स एंड आल्सो वेरी वेल टुडे विद द बैट Chris Lynn, a special guest. Hello and welcome. Yeah, thank you for having me. Well, you know, everybody at the post-match presentation had something or the other to say about the wicket. What did you make of it? Oh, look, I felt like it was all right personally, but naturally if you get a couple of runs. But no, look, I just think put it down to our bowlers. They set the game up for us and we took early wickets, which allowed us, when we were batting, just to knock the ball around and take less risks. But yeah, it was a little bit tricky. Obviously, Sharjah's known for being a high-scoring ground, but you know, we got the job done today. Yes, it wasn't polished, but as I said, we got it done and we can get the 2 points and move forward. Indeed, you needed those 2 points after 2 losses. You won that way towards the winning ways. But what did you make of your own performance? Yeah, look, I swung and missed at a couple, but on a wicket like this, that's what happens. But I just wanted to be really aggressive with my intent and try and win the game in the first 6 overs. And I thought myself and James Vince did that nicely and really set the game up for the the back end batters. Yes, as I said, I would have liked a couple less wickets and get it done with 6 overs to spare. But look, we'll take a win at this stage. Chris, you've had a number of experience of playing this format as well as playing all over the world. Now here in this league and for Gulf Giants, what is the kind of role which you have been given? Yeah, Andy Flower prepares very well, and everyone knows their role. Yes, my role up the top is to be an enforcer. As I said, really dominate that power play. We've got some power at the top with Jamie Smith, James Vince, and then Jordan Cox to come in at number 4. So, yeah. Batters take the game on. Don't sit back because the players are so, skilled. Don't wait for a short and wide one because it's not going to come. So, as an enforcer batting in the top order, my role, as I said, try and clear the boundaries, put the pressure back on the bowlers. And yes, it is a smaller field, so you got to, if you take the game on, the luck of the bounce will hopefully come on your side. Yeah, also, you use a strong bottom hand, Chris, on a track like this, which was keeping low in the odd and you had an unexpected bounce at times. Do you have to make some adjustments in order to score those runs? A little bit, but as I said, with that short side, I think it was only 55 metres, I believe. So I believe top or bottom hand, you've got the ability to clear that short side. But as I said, it might enforce the bowlers to bowl a little bit wider, which then takes the stumps out of play. So just, taking the game on and challenging the bowlers to change their game, plan A, and then, from a bat versus ball, I think I'm on top at that stage. Yeah. Enjoying the super sub ruling, Chris? I think it has to come in every tournament around the world. I'll get a few more years out of these old legs. But no, I enjoy it. What I actually found tricky, it's the first time I've done it batting second. So how do I fill the hour and a half when the boys are out there? So that was a new experience for me. But you don't have to do things too much differently. At the end of the day, as I said, bat versus ball, keep your head still, watch the ball and swing hard. Yeah. Well, how good was Carlos Brathwaite though with the ball today? Yeah, look, I'm a little bit surprised he didn't start earlier in the tournament. He was player of the final last year with the ball, got a couple of crucial wickets, but not only that, his experience in the field as well. Our fielding's just been a little bit off, and so to have him in the field, that calmness, you can't buy that experience. So for us, we love to have him out there, and he's going to hit some big sixes with the bat as well. So don't be surprised if he wins the game with the bat in hand. That's right. Well, Carlos Brathwaite, he makes his presence felt. He got a chance today to play the ILT20, and there you go. But he was also quite the hero of last year's final. So 2 of those we've got here on the show today. But this is the pitch map, and this is how he bowled.
Yeah, well, I think it just sums up the wicket nicely, which, he didn't bowl. I think he bowled this fifth or sixth over the power play. So he got, some communication back from our bowling group, hit a wonderful 8-metre length there, and I think that's so important. And I think that's something that the Golf Giants bowling lineup do very well, is that they, we plan well and then we just stick to our plans. Look, if the plan's not right at the night, we can go back and reassess that. But moving forward, I think we hold our nerve really well. And I said it to Sam Billings out in the middle. The team who panics last will win this game. I would imagine that there's a lot of pressure on defending champions. Do you guys have that, or what's the mood of the camp like? Yeah, absolutely. I mean, we're the hunted now. So, but in saying that, you look through the whole list of the ILT teams, they're phenomenal players. They're world class, and that's why it's such a high profile tournament. So for us, we started the tournament well last year, but we finished it even better. So our goal now is to try and play that perfect game. Maybe not just yet, maybe just build towards the back end. But the fact that we've won this game and haven't played our best cricket is a really good sign for us. Yeah. Also, I think in T20 especially when you're batting, Chris, I think the top order holds the key. And I think it's good to see you and James Vince again getting Gulf Giants off to a good start. It happened last season also, and that's one of the reasons why Gulf Giants won in the end. Yeah, absolutely. I mean, James Vince just ticked over 10,000 T20 runs, so that's a magnificent achievement. I'm sure he'll have a beer for that tonight. If he doesn't, I will. Look, and we've got guys in the middle like Hetmeyer, who hasn't scored a run yet, so he's going to come good towards the back end of the tournament. At no stage are we going to panic throughout that batting lineup, because ultimately in T20, if you come off once every 3 innings, that's all you need. Yes. We've got match winners from 1 to 11 in our lineup, and I'm really proud of the way the boys played tonight, even though it wasn't our most polished performance. We'll take the 2 points. Absolutely. We got 3 days off now, so we got a bit of time to reflect, go and freshen up. Yes, and then the schedule gets pretty hectic. But as I said, we've got 2 wins now. Hopefully a few more around the corner. जी बिल्कुल, यहाँ पे खास बातचीत कर रहे हैं हम क्रिस लिन के साथ, जिनका आज बल्ला बोला और ये पिछले साल के फाइनल्स के हीरो भी थे, और हम इनसे बात कर रहे थे कि कार्लोस ब्रैथवेट के गेंदबाजी के बारे में इनका क्या ख्याल था, और साथ ही साथ आज मैच बड़ा क्लोज हो गया, लेकिन ही सेइंग कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसे हम लेके खुश हैं. एक ऑफ डे है, लेकिन उसे एंजॉय करके फिर से हम जो है खेलने आएंगे. ऑलराइट, सो दिस इज अ स्पेशल सेगमेंट वेयर वी प्ले लाइक अ रैपिड फायर विद यू. ऑलराइट, एंड under pressure, Chris. Under Come pressure. on. Let me just open up the questions. Yeah, here you go. All right, so with rapid fire, you hardly have any time to answer it. So whatever comes to your mind first, that's where you go. All right, the very first one is, what's your favorite holiday destination, Chris? Hamilton Island in Queensland. All right. Favorite cheat meal? Oh, KFC. Oh, wow. You and Shobak have something in common there. All right. What do you do when you're not playing cricket? Probably watching horse racing. Oh, nice. Okay. Which teammate of yours could be a movie star? Oh, it's got to be Carlos Brathwaite with those dance moves. I would imagine. All right. What would you play in your own biopic? I mean, who would play your biopic? Yeah. There's a couple of options there. The Rock. Oh, that's a good big one. All right. What then. about John Cena? I was going to Isn't say it? Johnny Sins, Yeah. a different ballad, but anyway, The Rock. Here's hoping he's watching the show right now. In Hindi. That'd be funny. Your best quality? Probably my character. Oh, wow. That's nice. Your biggest fear? The weather. The weather? What kind of weather do you fear? Oh, I don't know, when it rains and the thunderstorms. Just get a bit scared at times. And your cricketing idol? Cricketing idol, Brendan McCullum. Oh, nice. And this is a question which goes like, which is your biggest bawal moment? Now, bawal means crazy, huge. I'm going to relate it to this ground when I took a catch over in the corner to dismiss AB de Villiers when there was about 5 or 6 runs to win. It was going for 6, so that was a sort of a sliding door moment for myself. So, pretty cool. Lovely. We have a lot of Indians watching this. So your favorite Indian city? Oh, any IPL team watching? No, I really enjoy it. I had 6 years at Kolkata, so I thoroughly enjoyed the city of joy up there. I hope they're watching. Thank you so much for joining us, Chris, and wish you all the best. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Thanks, Chris. Thanks. Keep up the good work. All right, thank you so much, Sabah. Thank you so much, Nikhil. We'll take a short break here. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि एक खास मेहमान हमारे साथ क्रिकेट सफारी पर जुड़ेंगी, रीमा मल्होत्रा, और उनसे करेंगे बातचीत कि किस तरीके से आज स्पिनर्स ने जो खूब विकेट छटकाए. हम यूं गए और हम यूं आए.
आज डबल हेडर सैटरडे में शाम का मैच हो रहा था शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में, एक आइकॉनिक क्रिकेट स्टेडियम जहां पे सबसे ज्यादा ओडीआईस खेले गए, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल्स खेले गए और सबसे ज्यादा सिक्सेस भी यही लगे हैं। और जितने भी यहाँ पे क्राउड और ऑडियंस और फैंस आते हैं सबसे ज्यादा यही एंजॉय करते हैं, बिकॉज शारजाह का माहौल ही कुछ ऐसा होता है कि समा बंद ही जाता है, जो भी खेल रहा हो, जैसा मैच चल रहा हो। और मैच भी आज गजब का हुआ जहां पे गल्फ जायंट्स ने आज का मैच 3 विकेट से जीता, लेकिन काफी क्लोज था। लो टोटल था, 132 से चेस कर रहे थे गल्फ जायंट्स, लेकिन उसे बहुत बेहतरीन तरीके से बांध के रखा था दुबई कैपिटल्स के गेंदबाजों से। एक स्पिनर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए, रीमा मल्होत्रा, साथ ही साथ निखिल चोपड़ा। हेलो। पहले तो माहौल की बात करते हैं, बिकॉज आज ना पता नहीं कमेंटेटर्स ने इस बारे में मेंशन किया कि नहीं, लेकिन बार बार ये चर्चा जरूर हो रही थी कि भाई आज के हीरो डीजे भी थे। हाँ। बहुत बार हुआ है। कमाल का म्यूजिक बजा रहे थे। कमाल का म्यूजिक। तो माहौल कैसा लगा आपको आज रीमा शारजाह में? देखिए, मुझे लगता है जब क्रिकेट खेला जाता है ना तो आपके साथ जो क्राउड होता है ना वो माहौल बना के ना क्रिकेट को और इंटरेस्टिंग बना देता है और वो जान डाल देता है गेम में। और साथ में आज डीजे ने 4 चांद लगा दिए, 80s के गाने चले, 90s के चले, हिंदी चले, पंजाबी चले, इंग्लिश चले, सब वो चाहिए था मसाला जो मैच में चाहिए था वो सब था आज यहाँ पे। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप घर बैठे तो एंजॉय कर ही रहे होंगे, लेकिन एक टिकट खरीद कर आइए यहाँ पे हमारे साथ मैच देखने के लिए। अब बात करते हैं डेविड वार्नर की, जो कि ऑफ कोर्स शान है, आन बान शान है ILT20 के लिए, लेकिन बल्ला चल नहीं रहा। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अब 4 इनिंग्स हो गए निखिल, और चारों आप डिसमिसल्स भी देखेंगे डेविड वार्नर की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बॉल जो है ना बहुत लेट साइड कर रहे हैं। आगे का बॉल खास तौर से वो बार बार बीट हो रहे हैं। और अगर गौर से देखेंगे उनके आज का भी डिसमिसल, दोनों पाँव जो है ना वो क्रीज पे खड़े रहे और फिर देख रहे थे कि शायद जिस तरीके से बॉल पिच होने के बाद हल्का सा शायद बाहर हुआ, लेकिन बॉल उन्होंने देखी नहीं। और अगर हल्का सा वो सकारात्मक फुटवर्क होता, पाँव जो है वो बॉल की तरफ जा रहा होता, तो कोई दिक्कतें नहीं होती। और ये गलतियां बतौर बैट्समैन तब होती हैं रिद्मा, जब आप बॉलर के हाथ से बॉल छूटता है ना, तब आप नहीं देखते, तभी आप जो है अपनी पोजीशंस में पहुंचने के लिए लेट होते हैं। जी रीमा, आपके अनुसार क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे डेविड वार्नर के लिए? उनके माइंडसेट की हमने बात की थी, हमने ये भी बोला था कि स्ट्रगल कर रहे हैं यूएई कंडीशंस में सेटल होने के लिए, लेकिन आज आपको कहाँ कमी लगी? देखिए, वो बड़ा प्लेयर है, बहुत रन उन्होंने किए हैं, लेकिन हर प्लेयर को एक नए दिन अपना इम्तिहान देना होता है। यहाँ पे जो विकेट्स है बॉल थोड़ा रुक के आता है। और अगर डेविड वार्नर के आप बैटिंग स्टाइल देखेंगे, ऑन द राइज खेलना पसंद करते हैं, जब विद द बाउंस खेलते हैं, ये वो विकेट्स नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉल के पास जाना होगा या आप उसको आने दीजिए। अगर आप फुटवर्क नहीं करेंगे ना, आज का जो डिसमिसल था वो सीधी गेंद थी, ऐसा नहीं था गेंद अनप्लेबल थी, कोई डेविल था विकेट में, कुछ नहीं था, बिल्कुल सीधी गेंद थी, पैर चला ही नहीं। और बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस। जब प्लेयर कॉन्फिडेंस में नहीं होता ना, तब ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करता है। तो मुझे लगता है अगर वापस भी आना ना अपने इस बैट पैच से, तो एक आपको पारी खेलनी होगी, उसके बाद यही डेविड वार्नर, वो पुराने डेविड वार्नर रन मशीन नजर आएंगे। जी हाँ बिल्कुल, बड़े बल्लेबाज। जी निखिल, मैं ये सिर्फ कह रहा था कि अब तो वो दुबई कैपिटल्स के लिए शायद अगले मैचेस नहीं खेलेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, उनको वापस बुला लिया है। वो T20s खेलेंगे अपने कंट्री के लिए, और एक आउटसाइड चांस है कि T20 विश्व कप की तैयारी तो शायद डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर से खेलते हुए आपको नजर आएंगे। सिर्फ संन्यास उन्होंने लिया है लॉन्गेस्ट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट से। लेकिन उनकी कप्तानी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, क्योंकि पहले जब बल्ला नहीं चला तो कप्तानी बहुत अच्छी हो रही थी। आज आपको कहीं कप्तानी में कमी लगी कि सिकंदर रजा को जो आप 14th ओवर में लाए, उन्हें थोड़ा पहले ला सकते थे? जी हाँ, क्योंकि यही चर्चा हम कर भी रहे थे कॉम्बॉक्स में कि आपको 14th ओवर में अपने की बॉलर को, जो इन फॉर्म बॉलर है, उसको आप रोकेंगे, वो भी इस विकेट पे जहाँ पे स्पिनर्स का बॉल बाला रहा है, चाहे वो तीक्ष्ण हो, चाहे वो अकील हसन हो। आपके पास सिकंदर रजा थे, जब वो आए कहानी पलटी, मैच में आपने वापसी की और एक समय तो आपने मैच बना भी लिया था। अगर यही वो स्टार्टिंग में आके 1-2 ओवर पे डाल देते ना, इस विकेट पर डेफिनेटली स्पिनर्स के लिए मदद है, वो स्टंप्स पे अटैक करते हैं, और वही आज हुआ। आप ये देखें ना, 5 विकेट आपके स्पिनर्स ने लिए हैं, पहले आते तो 4 ओवर भी पूरे ने डाले। थोड़ी सी मैं नाखुश हूँ, थोड़ी सी मैं नाराज़ हूँ कि दुबई कैपिटल्स के पास चांस था मैच पहले बनाने का और मैच जीतने का भी। मैच विनर्स को परखना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जब जब वो मैदान में होंगे वो क्राउड पुलर हैं। आप किसी भी देश से हो, अगर डेविड वार्नर खेल रहे होंगे और आप उस शहर में हो, तो आप ज़रूर मैच देखने आएंगे। और इसीलिए मैं एक इंडियन फैन से मिली और उनसे पूछा कि आखिर डेविड वार्नर में उन्हें इतना खास लगता क्या है। आइए आपको दिखाएं। डेविड वार्नर एक ऐसा नाम जो कि DP वर्ल्ड ILT20 की शान है। उनका बल्ला भले ही ना चल रहा हो, लेकिन जब जब वो मैदान में होते हैं वो फैंस की जान होते हैं। आइए इन फैंस से जरा पूछें आखिर उन्हें वार्नर के बारे में इतना अच्छा लगता क्या है। So what is it about David Warner you love? He is a dynamic opener, plus if you see his records in test match, T20 and everywhere, he blasts like anything. Today unfortunately I support
Gulf Giants, so he got out, so I'm happy. डेविड वार्नर आईपीएल का और क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया का एकदम सुपर रन स्कोरिंग प्लेयर है, तो ऑब्वियसली उसको जब भी देखते हैं तो वेरी एक्साइटेड एंड टू सी हिम, एंड दैट इज द रीजन वी केम हियर ओनली फॉर द डेविड वार्नर। वार्नर सबसे पहले मेरे लिए है ग्रेट प्लेयर, फैमिली मैन, इंस्टाग्राम जीनियस, क्रिकेटिंग लेजेंड है। आज अच्छा नहीं खेले, ठीक है, होता रहता है क्रिकेट में अप एंड डाउन, बट वार्नर मतलब बहुत बड़ा क्राउड पुलर भी है, नहीं, इट्स अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। देखिए, मैदान हो या इंस्टाग्राम, जीनियस तो है डेविड वार्नर, लेकिन आज वो फंस गए कार्लोस ब्रैथवेट की बॉल पर। देखिए, बॉल ने कुछ हरकत नहीं की थी, इट्स ऑल इन द माइंड। मैंने शुरुआत में कहा था माइंडसेट का गेम है, और जब कोई भी गेंदबाज हो, कोई भी बल्लेबाज हो, वो रन नहीं करता है, विकेट नहीं लेता ना, तो कॉन्फिडेंस की बात आती है, एंड क्रिकेट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। वो डेविड वार्नर पर लैग किया, जो सीधा उनकी कैप्टनसी पे आज रिफ्लेक्ट किया। लेकिन ये वो विकेट है जो ब्रैथवेट ने आज ली है। 3 विकेट आज पहला मुकाबला खेलते, लगता है तैयारी डगआउट से करके आए थे। वो उतरे दुबई के साथ थे, अपने बैट और बॉल लेके नहीं, साथ में कॉन्फिडेंस लेके, और सेलिब्रेशन देखिए। जब आप क्रिकेट को एंजॉय करते हैं ना, तो आपका गेम और निखर के आता है। और आज ब्रैथवेट ने वो अपनी करामाती गेंदबाजी से शुरुआत में ही दुबई कैपिटल्स को बैकफुट में धकेल दिया था। जी निखिल, ही पिक्ड अप वेयर ही लेफ्ट फ्रॉम। फाइनल्स में जिस तरीके की उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था, वही उन्होंने पहले मैच में भी कर दिया आपने। और अच्छी बात यह है कि चीज़ें ना बड़ी सरल रखते हैं। जब पहला स्पेल डाल रहे थे तो सिर्फ अच्छी लाइन और लेंथ, हाथ में थोड़ा सा नया गेंद था, और जब तीसरा विकेट लिया, जब सिकंदर रजा 47 रन और अंतिम 19वें ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे, जानते थे कि वो बड़ी हिट्स मारने को देख रहे हैं, तो एक प्लान था ऑफ स्टंप के बाहर वो ऑफ साइड को पैक करके फिर ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर डाल रहे थे। तो चीज़ें सरल रखते हैं, गेम की सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं, तभी इतने वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहते हैं। जी, कंसिस्टेंट परफॉर्मर, और भारत एक ऐसा देश है जो कंसिस्टेंटली उनसे प्यार करता है, चाहे वो डेविड वार्नर हो या कार्लोस ब्रैथवेट। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम, लेकिन आपको याद होगा स्टार वाज बोर्न इन इंडिया, द ईडन गार्डन्स। आपको दिखाएं ये स्पेशल कनेक्शन इंडिया के साथ कार्लोस ब्रैथवेट का। Namaste. Barely, just a little bit, Eden Gardens. I wonder why. Music, more of a party atmosphere. In India and in the East, there's so much fanfare around the game, whereas in the West Indies, there's more fanfare around the event. But it's music, it's dancing, it's laughter, it's colourful. In both places, but they're very different. Yeah, 100%. They probably have more access to players as well, and they're cricket crazy. Rahul Dravid, loved him as I was growing up. Had the pleasure of meeting him in the West Indies before I played international cricket. Rahul Dravid, as good a player as he was, and we all know his record, he's an even better human being, and that was a pleasure. It was interesting. I didn't expect to see the cultism that they had, the ultras, etc. It was actually a quite interesting experience, something I wanted to tick off. Thank you, India. Jaldi Malinge. थैंक यू कार्लोस। जी हाँ, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, और उनसे बात भी कर रहे थे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। उनकी बेटी यहाँ उनका मैच देख रही थी और इस बात से बहुत खुश थे। चलिए आपको जल्दी से एक बार पॉइंट्स टेबल दिखा दें और किस पायदान पे कौन सी टीम खड़ी है। सबसे ऊपर होंगे माई एमिरेट्स, जो कि 6 पॉइंट्स के साथ ऊपर है, लेकिन एक बार आप नजर नेट रन रेट पर भी डालें, क्योंकि सबसे अच्छा नेट रन रेट और बाकियों से कितना ज्यादा 2.56 का नेट रन रेट है इनके पास। उनके नीचे है दुबई कैपिटल्स, जो कि 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे पोजीशन पे, आज हारे जरूर है लेकिन अभी भी दूसरे पोजीशन पर है। और उसके बाद गल्फ जायंट्स, उन्होंने बढ़ोतरी की है पॉइंट्स टेबल पर, जो कि तीसरे नंबर पे आ गए 4 पॉइंट्स के साथ 0.15। और बाकी 3 को देखें तो अभी नेगेटिव में चल रहा है उनका नेट रन रेट। निखिल, आपके अनुसार कौन सी टीम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है फिलहाल ILT20 में? देखिए, माई एमिरेट्स से खतरनाक टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं चली। मुझे लगता है दुबई
कैपिटल्स अच्छी टीम थी स्टार्ट द टूर्नामेंट, लेकिन दुर्भाग्य से उनके दो मेन मैच विनिंग प्लेयर्स अब नहीं होंगे अवेलेबल। दोनों ऑस्ट्रेलिया अपने देश की ड्यूटी पे चले जाएंगे, फ्रेजर मैगर्क और साथ में अब डेविड वार्नर। अब देखना है कि यहाँ से किस तरीके से दुबई कैपिटल्स पलटवार करती है। गल्फ जायंट्स के लिए आज की ये जीत बहुत महत्वपूर्ण थी। 2 अंक के साथ जिस तरीके से उन्होंने अपना नेट रन रेट जो है ना वो पॉजिटिव में कर लिया है, क्योंकि अंत में मुझे लगता है अबू धाबी नाइट राइडर्स जो अबू धाबी में वो 95 रन वाला मुकाबला जो पहली इनिंग्स में ऑल आउट हो गई थी, वो उनको बहुत वो हर्ट करेगा। तो नेट रन रेट इज गोइंग टू बी की। और वही इसीलिए तो माय एमिरेट्स अपने नेट रन रेट की वजह से इतना आगे हैं। आपके लिए 11वें मैच पे हैं हम अब, तो 34 मैचेस हैं, 17 फरवरी को फाइनल है। आपके लिए अब तक कौन सी फेवरेट टीम लग रही है आपको? देखिए, माय एमिरेट्स से तो अपनी जगह बनाए रखे, लेकिन मैं गल्फ जायंट्स के साथ जाना चाहूंगी, क्योंकि इस टीम के पास ना मुझे मैच विनर नजर आते हैं, इसमें मुझे वेराइटी नजर आती है और मुझे यूटिलिटी प्लेयर नजर आते हैं। और अगर आपके पास वो कॉम्बिनेशन बनता है ना 11 का, तो आपके पास सब कुछ है। आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, आपके पास अच्छे ओपनर है, अच्छा कैप्टन आपके पास है जिनके पास फॉर्म है। 10,000 रन उन्होंने पूरे किए हैं। अब ब्रेथवेट आके और थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं तो दाल में स्वाद तो आता ही तड़केगा, लेकिन यहाँ पे इस टीम में वो मजा आ जाएगा क्योंकि वो आपको कॉम्बिनेशन को अच्छा करता है। तो कहीं ना कहीं माय एमिरेट्स और गल्फ जायंट्स डिफेंडिंग चैंपियन है, यू नेवर नो, 2-2 हो सकता है। जी बिल्कुल, बट यू नेवर नो कि कौन सी टीम नीचे से आके इन दोनों टीम्स को टक्कर देगी। क्या कल एक ऐसा दिन होगा, क्योंकि माय एमिरेट्स एक बार फिर आपको दिखेंगे एक्शन में। आपको बता देंगे डबल हेडर संडे है, तो फिर सबसे पहले दोपहर में होगा माय एमिरेट्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी नाइट राइडर्स को अगर बने रहना है इस कंपटीशन में, प्लेऑफ्स में जगह बनानी है, तो ये मैच जीतना होगा और वो जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपको शाम का भी मैच दिखा दें, डबल हेडर है, तो शाम में हम एक बार फिर शारजा में होंगे और लेकर आएंगे आपके लिए एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला जहां पे वाइपर्स भिड़ेंगे वॉरियर्स के साथ। अब शारजा वॉरियर्स अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो एक तरीके का जादू तो उन्हें करना पड़ेगा। शारजा वॉरियर्स वाइपर्स, किसका पड़ रहा ज्यादा भारी है? देखिए, जो इस विकेट को पढ़ ले अच्छे से, मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं। चाहे आप पहले बैटिंग करके स्कोर करते हैं तो सेकंड टीम नहीं करती, कई बार पहली टीम नहीं करती। जो इस सतह को पड़ेगा, परिस्थितियों के अनुकूल खेलेगा, उसका पड़ा भारी रहेगा। और जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि आपके पास वो पॉजिटिव इंटेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट सिलेक्शन, क्योंकि आप रन बोर्ड पर डालेंगे तभी आप मैच बनाएंगे। 3 मैचेस हो गए निकल यहाँ पे, आपने क्या पढ़ा है सतह के बारे में? देखिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस विकेट का नेचर नहीं बदल सकते आप। जैसे जैसे गेम चलता है ना, बॉल पुराना होता है तो थोड़ा सा एक तो फंस के आता है, उसमें उछाल कम हो जाती है। स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट्स खेलना मुश्किल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट। जितना आप वी में खेलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और कोई भी टीम अगर पहले बल्लेबाजी कर रही है, शाम को वो बल्लेबाजी करे, तो पहले 6 ओवर महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि कड़ा गेंद रहता है, नया गेंद रहता है, बॉल बैट पे और अच्छा आता है। बैट्समैन शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन वी में खेलना होगा। जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, थोड़ा सा धीमे डालेंगे, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, उछाल कम है। आपको हर गेंद जो है ना स्टंप्स के भीतर ख़त्म करना है, अगर बैट्समैन के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा करनी है। लेकिन कल का मुकाबला ना मज़ेदार इसलिए रहेगा, कल शायद डेजर्ट वाइपर्स के लिए लेफ्ट हो सकता है राइट, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर, टिमाल मिल्स, कमाल की गेंदबाजी है वाइपर्स की। कोई एक पर्टिकुलर स्टार कल जिसके ऊपर नजर रहेगी आपकी रीमा? शाहीन अफरीदी आ रहे हैं, आप कैसे उनसे नजरें उठाएंगे? वो दिल जीतना जानते हैं। जी बिल्कुल, दिल जीतना जानते हैं और मैच भी जीतना चाहते हैं। एक मैच विनर है वो, तो उन पे नजर रहेगी। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। थैंक यू सो मच निखिल, थैंक्स सो मच रीमा, थैंक्स अ लॉट। देखिए, एक्शन कंटिन्यूज ऑन डीपी वर्ल्ड ILT20 डबल हेडर है। दोपहर से होंगे हम लाइव, तो दोनों मैचेस में होगी आपसे मुलाकात। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।